So in the first class we have studied about immunity and we have studied about the natural immunity. So natural immunity is nothing but the immunity that is inborn, that is present when an individual right from the birth. That is nothing but the natural immunity, or it is also called as non-specific resistance. Now these natural immunity, it is of three types: species natural immunity, racial natural immunity and individual natural immunity. ये हम ऑलरेडी एक क्लास में देख चुके हैं. टुडे विल स्टडी अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और it is also called as adaptive immunity, or it is also called as specific resistance. Now as the name suggests, acquired. So these immunity, it is acquired during the lifetime. पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लाइफ के दौरान ये इम्यूनिटी को एक्वायर किया जाता है, इसीलिए इसको बोला गया है एक्वायर्ड. और अडेप्टेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, देयरफॉर अडेप्टिव इम्यूनिटी. As specific antibodies are produced against that antigen, therefore it is known as specific immunity also. So acquired immunity is of two types: natural immunity, or it is also called as innate immunity, or it is also called as non-specific resistance. Whereas second type of immunity, it is known as acquired immunity, or adaptive immunity, or specific resistance. Now today we'll study about the acquired immunity. So the immunity or resistance that is acquired during the lifetime is called as acquired immunity. Now these acquired immunity, it is of, और या इसको हम बोलेंगे इट इज अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. तो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के डिफेंसेस होते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड. हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है. सो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब ये काम कैसे करता है? ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, और रेडीमेड एंटीबॉडीज आर प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल, देयरफॉर इट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है. कैसे? या तो नेचुरली या फिर थ्रू वैक्सीन, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नाउ दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज कैटेगराइज्ड एज एक्टिव एंड पैसिव. सबसे पहले इम्यूनिटी दो टाइप का होता है. वन इज नेचुरल एंड सेकंड इज एक्वायर्ड. नाउ दिस नेचुरल इम्यूनिटी इज ऑफ थ्री टाइप: स्पीशीज, रेशियल, इंडिविजुअल. एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज ऑफ टू टाइप्स: एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है. Now this is the resistance or immunity that is acquired provided by the individual due to antigenic stimulus. अभी एंटीजेनिक स्टिमुलस क्या होता है? जब कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, that results in the activation of immune system, or that response is known as antigenic stimulus. The pathogenic microorganism that tries to enter our body and it stimulates the immune system is known as antigenic stimulus. ठीक है. Now this active immunity, it is due to the antigenic stimulus, that is due to the entry of pathogenic microorganism. अब ये antigenic stimulus की वजह से क्या होगा? It results in activation of our immune system, and that activated immune system, it will produce antibodies against that pathogenic microorganism and will destroy that particular microorganism. क्योंकि यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन है इम्यून सिस्टम का, इसलिए इसको एक्टिव इम्यूनिटी बोला गया है. ठीक है, सिंपल. अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें लेटेंट पीरियड होता है. लेटेंट पीरियड इज नथिंग बट द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. मतलब जब पैथोजन एंटर करता है हमारे बॉडी में, और वो जो टाइम हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए लगता है, इट इज नोन एज लेटेंट पीरियड. ठीक है. नाउ अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, हम आगे देखेंगे व्हाट इज ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी, विच आर दी मैकेनिज्म्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, जो आपको सेकेंड यूनिट में है. फिर मैं आपको बता रही हूँ कि besides the cellular immunity and the humoral immunity, this active immunity also produces immunological memory cells. ठीक है. अब ये जो immunological memory cells जो होते हैं, ये active immunity की वजह से हमारे जो बॉडी में डेवलप होते हैं, they रिमेम्बर कि ये एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर हो गया है. ठीक है. नाउ अब वही एंटीजन अगर हमारे बॉडी में फॉर द सेकेंड टाइम एंटर करेगा, देन दिस एक्टिव इम्यूनिटी that produces the immunological memory cells, it will provide the secondary immune response. ठीक है. ये क्या करेंगे? secondary immune response produce करेगा, and the secondary immune response, it is more quick, more effective and will kill the microorganism जैसे वो एंटर करता है. तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस करता है, दैट रिटेन्स द मेमोरी ऑफ प्रायर एंटीजेनिक स्टिमुलस. मतलब अगर कोई एंटीजन हमारे बॉडी में पहले एंटर कर चुका है, तो वो याद रखते हैं सेल्स कि हाँ, ये एंटीजन पहले हमारे बॉडी में एंटर किया था. नाउ सेम एंटीजन इफ इट एंटर्स the body for second time,
जो ये मेमोरी सेल्स है, दे रिमेम्बर कि वो एंटीजन एंटर किया था एंड दे प्रोड्यूस सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स विच इज मोर क्विक, मोर इफेक्टिव एंड इट प्रोड्यूसेस या इम्यूनिटी दैट लास्ट लॉन्ग. ठीक है, नाउ दैट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये है एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन है इम्यून सिस्टम का, ताकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा. इसमें लैटेंट पीरियड है. लैटेंट पीरियड ये वो पीरियड होता है विच इज द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो टाइम लगता है इट इज नोन एज लैटेंट पीरियड. उसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स which retains the memory of prior antigen stimulus and produce a secondary immune response when the same antigen enters the body for second time. In short, ये एक्टिव है. इसके दो पार्ट है, लेकिन पहले देख लेंगे व्हाट इज पैसिव. नाउ पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है. नाउ यहाँ पे रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी डेवलप होती है इंडिविजुअल में, बट ड्यू टू द पैसिव ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज. यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है या प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में रेडीमेड. इट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी. अब यहाँ पे कोई भी इम्यून सिस्टम का पार्टिसिपेशन नहीं है, जैसे देर इज नो लेटेंट पीरियड. यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स भी डेवलप नहीं होती है. उसके अलावा इसकी जो इम्यूनिटी है इट लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. देयरफॉर बूस्टर डोजेज आर नेसेसरी वन आफ्टर द अदर. ठीक है, नाउ ये जो बट पैसिव इम्यूनिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट या बहुत ही हेल्पफुल होती है इन केस ऑफ इमरजेंसी. कोई एक्सीडेंट्स या फिर कोई इमरजेंसी केस होता है, एट दैट टाइम दिस पैसिव इम्यूनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि एट दैट टाइम क्या होता है, वो इंडिविजुअल में रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड किया जाता है, और वो जो इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन एंड दैट रेडीमेड एंटीबॉडीज इट प्रोटेक्ट्स दैट इंडिविजुअल. उसके अलावा इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंट इंडिविजुअल, जो बहुत ही मतलब इसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. इन दैट केस ऑल्सो पैसिव इम्यूनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये हो गया इन शॉर्ट एक्टिव एंड पैसिव. अब हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव के व्हाट आर द सब टाइप्स. सो इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एक्वायर्ड. एक्वायर्ड इज ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव. नो एक्टिव इम्यूनिटी इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. दैट इज नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. नाउ पहले हम देखेंगे नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. एज द नेम सजेस्ट ये नेचुरल होना चाहिए. ठीक है, मतलब बाहर से कोई जिसका रोल नहीं है. सो एक्टिव क्योंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए. सो व्हाट इज नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस दैट इज डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू द एंटीजन इन अ कोर्स ऑफ डेली लाइफ. उनके डेली लाइफ में अगर कोई एंटीजन से वो एक्सपोज होता है इंडिविजुअल, तो उसमें जो इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता है, इट इज नोन एज नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या होता है, कुछ सम इनएक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, सम इम्यूनिटी इट लास्ट लाइफ लॉन्ग एंड सम फॉर सम इट इज फॉर सम डिसीजेस इट इज फॉर सम और सेवरल ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, देन बोलो आप मीजल्स बोलो. ठीक है, ऐसे जो कुछ टाइप ऑफ डिसीजेस है, अगर किसी बंदे को एक बार हो जाता है चिकन पॉक्स या बोलेंगे हम लोग, तो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट दी चिकन पॉक्स फॉर द सेकेंड टाइम. सिर्फ बंदे को एक ही बार होता है लाइफ में. दैट इज अगर वो चिकन पॉक्स वायरस के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो वो दैट पर्टिकुलर बंदे को चिकन पॉक्स होगा. बट इफ द सेम एंटीजन इट एंटर्स फॉर द बॉडी, चिकन पॉक्स वायरस अगर फिर से एंटर करता है हमारे बॉडी में, लेकिन वो बंदे को चिकन पॉक्स नहीं होगा, बिकॉज our body has acquired resistance for that particular disease. अब ये हो गया नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इसका दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, जो इंटेस्टिनल डिसीजेज होते हैं. फॉर एग्जांपल कॉलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री या वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस. ये जो डिसीजेस होते हैं इसकी इम्यूनिटी ये लास्ट करती है फॉर सेवरल ईयर्स. फॉर एग्जांपल एक बार किसी को टाइफॉइड हो गया तो वो होगा, फिर से होगा, बट आफ्टर सम ईयर्स, मतलब उसका रेजिस्टेंस पावर कुछ ईयर्स तक होता है. दिस इज नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. अब हम देखेंगे इसका सेकेंड टाइप, दैट इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, नाउ ये जो आर्टिफिशियल एज ए नेम सजेस्ट आर्टिफिशियल है. ठीक है, नाउ ये रेजिस्टेंस पावर या ये वो इम्यूनिटी है जो इंडिविजुअल में डेवलप होती है ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन. ये इंडिविजुअल पर्टिकुलर या बंदे में डेवलप होती है ड्यू टू वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. लेकिन हम क्या बोल रहे हैं,
कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम का पार्टिसिपेशन है बिकॉज इट इज एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है, वैक्सीन आपको उसको पता होना चाहिए व्हाट आर वैक्सीन। सो वैक्सीन आर नथिंग बट दी इंजेक्शन ऑफ particular pathogenic microorganism but in different types of form depending on the type of vaccines that are used. This depending on the type of microorganisms that are used, this vaccines are of different type. सबसे पहले तो ये समझ लो जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, इट इज ड्यू टू वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन इज नथिंग बट इंजेक्शन ऑफ एक्टिवली क्या बोलेंगे हम लोग, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन जिसका अटेन्यूएशन हुआ है, मतलब जिसका विरुलेंस पावर कम हुआ है, उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा बाय प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर एंटीबॉडी। दैट एंटीबॉडी विल डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दैट डिसीजेस। नाउ डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टाइप के यूज कर रहे हैं वैक्सीन के प्रिपरेशन में। ये वैक्सीन 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं लाइव वैक्सीन, दूसरे होते हैं किल्ड वैक्सीन, थर्ड होते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और देर ऑल्सो कॉल्ड एज टॉक्सॉइड्स, एंड फोर्थ आर सब यूनिट वैक्सीन। सो दे कम अंडर द आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम देखेंगे लाइव वैक्सीन, किल्ड, टॉक्सॉइड्स और सब यूनिट वैक्सीन क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लाइव वैक्सीन, एज द नेम सजेस्ट लाइव, मतलब ये वो वैक्सीन है जो डेवलप किया जाता है फ्रॉम द लाइव पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ जैसे लाइव तो यूज करते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो डाउट, बट इट इज इन अटेन्यूएटेड फॉर्म। अब उसके लिए आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज अटेन्यूएशन। Now attenuation is nothing but the process in which the pathogenicity is completely eliminated of that particular microorganism and its इसकी जो disease causing ability है उसको कम किया जाता है। ठीक है, so in live vaccines, these vaccines are prepared from the live pathogenic microorganisms which are attenuated, या उसकी पैथोजेनिसिटी को पूरी तरह एलिमिनेट किया जाता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी। इसका क्या मतलब होता है, पैथोजेनिसिटी इज नथिंग बट द डिसीज कॉजिंग एबिलिटी, मतलब वो अगर पैथोजन हमारे बॉडी में इंजेक्ट जब करेंगे थ्रू वैक्सीन, वो डिसीज प्रोड्यूस नहीं करेगा नो डाउट, बट उसकी जो एंटीजेनिसिटी है, इम्यूनोजेनिसिटी है, इट विल रिमेन। इट मीन्स एंटीजेनिसिटी या इम्यूनोजेनिसिटी मतलब उसकी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की एबिलिटी। ठीक है, सो अगर ऐसे वैक्सीन हमारे बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमको डिसीज तो होगी नहीं नो डाउट, बट इट विल स्टिमुलेट अवर इम्यून सिस्टम। अगर हमारे इम्यून सिस्टम को वो स्टिमुलेट करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, इट विल प्रोड्यूस पर्टिकुलर एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट विल डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे लाइव वैक्सीन। अब दिस वैक्सीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वायरस। ठीक है, अब ये बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन कौन से है, इट इंक्लूड्स एंथ्रैक्स वैक्सीन फ्रॉम एंथ्रैक्स, बीसीजी वैक्सीन फॉर बीसीजी किसके लिए होता है, फॉर ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी स्टैंड फॉर बैसिलस कैलमेट गुएरिन, विच आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, या माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलेंगे हम लोग, हु हैव डिस्कवर्ड दिस वैक्सीन। इट इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस। एंथ्रैक्स वैक्सीन फॉर एंथ्रैक्स डिसीज एंड बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। दीज आर बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन। और वायरल लाइव वैक्सीन अगर हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल है सैबिन वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, सैबिन वैक्सीन फॉर अपना पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स डिसीज। ठीक है, नाउ इसमें क्या डिफरेंस है लाइव वैक्सीन में, यहाँ पे वैक्सीन कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अटेन्यूएटेड लाइव पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट उसकी पैथोजेनिसिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी। सेकेंड है किल्ड वैक्सीन, एज द नेम सजेस्ट किल्ड, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड फॉर्म में यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। अब ये किल कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, आइदर बाय यूजिंग बाय हीट ट्रीटमेंट और बाय यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दैट कैन बी फिनॉल और फॉर्मेलिन। तो या तो हीट ट्रीटमेंट से या तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है जो जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नाउ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। नाउ ये जो किल्ड वैक्सीन है इसकी
क्या बोलेंगे, जो ड्यूरेबिलिटी है या फिर इट इज इफेक्टिव ओनली फॉर सम ईयर्स एंड देयरफॉर बूस्टर डोज इज नीडेड, मतलब एक 1/1 डोजेस देते हैं. दैट इज अगर आप फॉर एग्जांपल अगर टाइफॉइड की वैक्सीन लेंगे, दैट इज टैब वैक्सीन फॉर टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड ए एंड बी, उसके लिए आपको डोजेस लेना पड़ता है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड सो ऑन. ठीक है. सो क्योंकि इसकी क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटेक्शन इज फॉर सम ईयर्स, देयरफॉर बूस्टर डोजेस आर नीडेड आफ्टर सम ईयर्स. ओके. इसका एग्जांपल है टैब वैक्सीन, दैट इज टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड ए एंड बी के लिए. पर्टूसिस वैक्सीन है फॉर वूपिंग कफ. कॉलेरा वैक्सीन है फॉर कॉलेरा. ये बैक्टीरियल वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन. वायरल है सैल्क वैक्सीन फॉर पोलियो. इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फॉर इन्फ्लुएंजा. हेपेटाइटिस ए वैक्सीन विच इज फॉर द जॉन्डिस. ठीक है. नाउ थर्ड हम देखेंगे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स. नाउ ये जो वैक्सीन है, ये these are nothing but different types of vaccines that comes under artificially acquired active immunity. Now bacterial toxins are also called as toxoids. They are inactivated form of bacterial toxins, especially एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं बैक्टीरिया में. एंटोक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स अलग अलग फॉर्म के होते हैं. तो यहाँ पे स्पेशली बैक्टीरियल टॉक्सिन के जो वैक्सीन है प्रिपेयर करने के लिए एक्सोटॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया आर यूज्ड. Now these exotoxins they are inactivated again by antimicrobial agents that is phenol and formalin, और फिर इसको यूज किया जाता है वैक्सीन प्रिपरेशन में. अगेन इसमें भी बूस्टर डोज की जरूरत है. आफ्टर 10 years द डोजेज आर रिपीटेड. इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो टिटेनस टॉक्सोइड है एंड डिप्थेरिया टॉक्सोइड है. ठीक है. नाउ फोर्थ इज सब यूनिट वैक्सीन. नाउ these subunit vaccines are also called as recombinant vaccines, and these vaccines are produced by genetic engineering technology. जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है, इससे ये सब यूनिट वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है. और इसमें क्या करते हैं, पूरा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं करते हैं वैक्सीन प्रिपरेशन में. ओनली बेस्ट पार्ट ऑफ दैट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, या दैट पार्ट विच कैन बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, ओनली दैट पार्ट इज सिलेक्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब यूनिट वैक्सीन. जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन प्रिपरेशन में, एंड इट इज ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव विच वेरी लेस साइड इफेक्ट्स. के साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं. इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस वैक्सीन या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर जॉन्डिस. सो दिस कंप्लीट्स द एक्टिव इम्यूनिटी या मोर स्पेसिफिक एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इसमें दो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. हम सेकेंड देखेंगे, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी. हम शॉर्ट में देख चुके हैं. पैसिव इम्यूनिटी है मतलब याद रखो कि यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड किए जाते हैं. that is again of two types, natural and artificial. Now naturally acquired passive immunity, ये क्या होता है? अब ये जो naturally acquired passive immunity है, it is a resistance that is developed by an individual by passive transfer of ready-made antibodies, क्योंकि ये natural है. ठीक है. यहाँ पे ready-made antibodies तो ट्रांसफर होती है passively, but from mother to fetus during pregnancy. ठीक है, ये natural है. यहाँ पे ये नेचुरल है ना, लेकिन यहाँ पे पैसिव, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी इसलिए रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है फ्रॉम द मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बींग्स जो मैटरनल एंटीबॉडी होती है IgG. अब आप लोग पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन के डिफरेंट क्लासेस, उसमें से एक क्लास होता है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G, which is also called as maternal antibody because it is transferred from mother to the fetus through placenta. Now it is नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. उसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उसमें ये मैटरनल एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है थ्रू कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रम इज नथिंग बट दी फर्स्ट मिल्क सिक्रीटेड आफ्टर द बर्थ. ह्यूमन बींग्स में भी कुछ मैटरनल एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है थ्रू कोलेस्ट्रम विच इज नथिंग बट द मिल्क. ठीक है. सो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज नथिंग बट the resistance that is acquired by the passive transfer of ready-made antibodies from the mother to the fetus during pregnancy. मैटरनल एंटीबॉडीज IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G टाइप, जो पैसिवली ट्रांसफर करता है एंटीबॉडीज. नाउ सेकंड है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. नाउ दीज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज नथिंग बट अगेन थ्रू वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. अब ये स्पेशली इसकी जो इम्यूनिटी है लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इसका स्पेसिफिक इस्तेमाल कब होता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी, when there is no time for the individual to produce particular type of antibody. In that case, these vaccines containing the ready-made antibodies are injected into particular individual. अब वो इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या पैरेंटल रिव्यू हो सकता है. ठीक है. तो जब बंदे के पास कोई टाइम नहीं होता है इमरजेंसी में, एंटीबॉडी दैट इज जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ वो टाइम पर रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट किया जाता है दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल में
और उससे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. दिस इज नथिंग बट दी आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, बट इट इज ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो टिटेनस, अगर आपको कोई नेल या दैट इज कीला वीला चुभता है तो आप टिटेनस टीटी का इंजेक्शन लेते हैं. दैट इज नथिंग बट टिटेनस. सो इन दैट केस आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए आपके बॉडी में, इसलिए वो टिटेनस का इंजेक्शन दिया जाता है. उसके अलावा स्नेक बाइट, इन दैट केस ऑल्सो स्नेक बाइट हो गया, टिटेनस हो गया. दीज आर वैक्सीन आर नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ artificially acquired passive immunity. This is nothing but the immunity. इसका क्लासिफिकेशन एंड ऑल. सो मैं आपको ये वाला पार्ट चार्ट जो है वो प्रोवाइड करूंगी, बाकी मैंने नोट्स आपको सब प्रोवाइड किए इसके. सो दिस कंप्लीट्स द पार्ट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी. हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम. फर्स्ट सेल्स देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में ऑर्गन्स देखेंगे. दिस इज द पार्ट ऑफ पेपर 2 दैट इज इम्यूनोलॉजी यूनिट 1. ठीक है. If you have any doubt, you can message me. Okay. Thank you. This completes our class.